Hello dears, I welcome all of you to the awesome platform of Science with Jawad. As you all know that we have started the English series of MDCAT is per schedule. Today we have test day of both chapters noun and pronoun. I have mixed some questions. Some questions are of noun and some questions are of pronoun chapter. I think on the day of Friday we had completed with the noun chapter as well. So today, on the day of Tuesday, we are taking test of it. Okay. First MCQs. First MCQs. We have many pits to play. Mr. Aftab Sahab, where we have mistake in the sentence? According to no sir, I will be coming to you. Last time he did some coaching, that's why I'm targeting him. We have many pits to play. You say that we have problem, we have circumstance in the option 3, option C. Why? Sir, you told sir rule it. रूल क्या बोल रहा है? रूल मुझे बताओ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन. चलो CH तो आया है, तो इसमें मैं क्या करूँ कि इसको मैं ओके ES क्यों लगाऊं? सर रूल है. रूल क्या बता रहा है? पूरा रूल को एक्सप्लेन करो. उस जो मैंने रूल बताया उस सबको बताओ, वो सारे एक्सप्लेन करो. सर जुमले को प्लूरल करते हैं. जुमले को चलो ओके. आई एम जस्ट मेकिंग दिस सेंटेंस प्लूरल. ओके, मैं जुमले इस सेंटेंस को, इस वर्ड को प्लूरल कर रहा हूँ. सही, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो रूल क्या था. पूरा कंप्लीट रूल बताओ ताकि आवाज दे रहा है. बता दिया. चलो रूल ये था, शाजिया आप भी देख लो कि इफ एनी वर्ड इज एंडिंग विद CH. ओके, कोई लफ्ज है वो, बाकी सबका आंसर यही है ना. कोई वर्ड है उसका कोई वर्ड है वो एंड हो रहा है CH पर. जो कोई भी लफ्ज हो, मैंने तो पिच का एग्जांपल दिया, कोई भी लफ्ज हो अगर वो CH पर एंड हो रहा है, एंड का मतलब खत्म हो रहा है, तो और वो छे की आवाज दे रहा है. देखो पिच लास्ट में छे की आवाज दे रहा है या नहीं. सो इफ एनी वर्ड इज एंडिंग विद CH एंड इट गिव्स द साउंड्स ऑफ चे, to make that word plural we will be adding ES not S. हम लोग अगर इस तरह के वर्ड को प्लूरल करेंगे हम लोग क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, S नहीं लगाएंगे. सो RC ऑप्शन इज wrong. Our answer will be C option. Okay, because we want to identify the wrong answers. There were many knives lying on the table. Yes, Mr. Afnan sir. There were many knives lying on the table. Where I have circumstance in this sentence? Lying. B. Option B, knives. Why? सर FES आया है, तो मैं इसको क्या करूं? की आवाज कर रहा है? नो. नवीद साहब प्लीज. नंबर C, लाइंग. क्यों? मिस लीना, बड़ा चैप्टर टेस्ट बताओ ना अभी. यस सजाद. एक पर खत्म हो रहा है. It is ending with F, but if I tell you the spelling of knife is this one, it is not ending with F, it is ending with E. Yes. Pardon me? FE.
ओके, अगर कोई भी लफ्ज हो वो एफ पर खत्म हो रहा है या एफ ई या डबल एफ ई. So if we want to make those words plural, we will not be adding s with them, but we will be adding ves. If I want to make knife plural, I will be writing like this, knives. Okay, knives. Okay. Okay, silent. Yes, K is silent. C, third MCQ. The circumstances always wants proofs. The circumstances always wants proofs. Mr. Ekstram will be telling where we have problem. Yes, sir. A, what does the word circumstance means? Problem, sir. Problem, issues. Sir, why circumstance is wrong? Will you please explain it? This circumstance. Why? If I want to tell you about the more problems, then the plural of circumstance is circumstances. Then Sir, you also write always, sir. no, always do not have any relation with circumstances. Okay, sir. सर ठीक है. दिया Option D proves. Why, sir? सर प्रो वो पर खत्म हो रहा है, सिर्फ ऐसा है भी एस नहीं लगता है प्लूरल. Very good. देखो F पर खत्म नहीं हो रहा है. प्रूफ सही है. अभी हम लोग प्रूफ कुछ मैंने वर्ड्स आपको बताए थे जो एफ और एफ ई या डबल एफ ई पर खत्म हो जाए, उसको अगर हम लोग प्लूरल करेंगे उसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे. वी विल बी पुटिंग एस ओनली टू मेक दोज वर्ड्स प्लूरल. ओके, मैंने प्रूफ्स कस्तन यहाँ पे ये वाला किया और इसका स्पेलिंग भी गलत है, WOVES मैंने कस्तन किया. सही है. ओके. MCQ number 4. The teacher taught us this lesson before 2 weeks ago. Before 2 weeks. From whom should I ask? Mr. Aftab will be telling. नहीं आपने पिछले दफा कहा था मेरा सारे MCQ सही है. वहाँ पे कहा था. मैंने कहा कुछ चलो अभी तो कुछ गलतियों से मुराद ये है कि तकरीबन ज्यादातर सही थे. तो अभी बताओ सर. यस सर. प्लीज डू नॉट वेस्ट माय टाइम. The teacher taught us this lesson before 2 weeks. डी 2 weeks ago इधर लिख सकते हो. 2 weeks ago. D option. Why? Why? एंट्री में चलो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते. एंट्री टेस्ट में अच्छा है, आप जिस तरह भी लगाओ उन लोगों का काम है सही ऑप्शन देना. एक्सप्लेनेशन वाइज नहीं मांगते कि क्यों, लेकिन मैंने तो मांगना है. Yes, will you please tell me why? Isham sir, will you please, can you explain it? प्लूरल है, उसके साथ एस नहीं लगाती, तुम्हें खुद प्लूरल है. अच्छा, वीक खुद प्लूरल है, नहीं करो. यस, तो एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी. हम लोगों ने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे जगहों पे जो हम लोग टाइम को एक्सप्रेस करें वहां पे भी एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाना होगा. यहाँ पे गलती ऑप्शन डी में है. इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ये इस तरह होगा. देखो, आई हैव टॉट यू पीपल, मैंने बताया था कि अगर कोई लफ्ज प्लूरल है उसको अगर आपने टाइम जो पोजीशन उसको एपोस्ट्रोफी लगाना है तो इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाओ, क्योंकि ये प्लूरल है.
इसको मैंने देखो टू वीक, टू मेरे साथ प्लूरल है तो ये वीक्स एस यहाँ पे आएगा, एपोस्ट्रोफी उसके बाद आएगा। हेयर वी हैव प्रॉब्लम इन ऑप्शन डी। ओके, ही टेक टू मेनी कॉफीज, ही टेक टू मेनी कॉफीज। नो नो नो, सुमेरा विल बी टेलिंग। प्लीज नॉइस नहीं करो। कॉफीज नहीं आएगा, वी है उस सर्कमस्टांस इन ऑप्शन डी। क्या आएगा मिस? यस, फिर आप उसकी जगह जो बताओ। यस, कॉफी आएगा। देखो यहाँ पे टू मेनी यानी बहुत ज्यादा, प्लूरल की बात कर रहा है, जमा की बात कर रहा है, तो जमा के साथ हम लोग यस नहीं लगाएंगे। यस, अच्छा इस तरह। यस सर, नासिर साहब विल टेलिंग। डबल एफ ई पर खत्म नहीं हो रहा है, ये इसका स्पेलिंग ये है, डबल एफ डबल ई। फिर सिंपल वी एस लगाओ, फिर भी गलत आएगा। सर ओनली कॉफी सर। चुप, आपसे किसने पूछा? ये फंसी हुई थी, मैं इसके पास आ रहा था। अच्छा मैंने बोला ओके। ये देखो, कॉफीज विद सम लिक्विड्स वी डू नॉट एड एस ई एस और आई एस टू मेक देम प्लूरल। इसका सिंपल चाहे जितना भी कॉफी ले रही हो, इसका कॉफी ही आएगा, एस उसके साथ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कुछ वर्ड और कुछ नाउन हमारे साथ क्या होते हैं, सिंगुलर ही रहते। ओके, सी व्हेन समवन इज नॉट एबल टू ब्रेथ द डॉक्टर्स प्रेफर देम ऑक्सीजन सिलेंडर। फिर साहब यू टेलिंग सर, देखो सिर्फ सोचो, when someone is not able to breathe the doctors prefer them oxygen cylinder। आपको कहाँ पे थोड़ा मसला दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ वही बताओ, एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगूंगा। अच्छा someone, ओके अच्छी ट्राई थी। डी क्यों? डी क्यों? चलो डी सही है, आपका तुक्का सही हुआ। क्यों नहीं तो बताओ क्यों? आपने कहा ऑक्सीजन, डी ऑप्शन सही है, मैंने कहा सही है, डी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन क्यों? जी अफनान साहब क्यों? जी रियान साहब, हंसना इसका सलूशन नहीं है, याद करना इसका सलूशन है। जी क्यों? खुद प्लूरल है ना। सिलेंडर, डरो नहीं, मसला नहीं है, बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना मारूंगा ना कुछ करूंगा। जी ऑक्सीजन आप बोलती हो एस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नो आंसर, जवाब नहीं है। यस मिस, वाई एस विल नॉट कम? यस मिस, कुछ गैसेस हमारे साथ होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, उसके साथ हम लोग एडिशन ऑफ एस नहीं करते, सो डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। मेनी चाक्स
were given to the teacher to teach. सर ये मैं बताऊँ हाँ चलो बताओ. Many chalks were given to the teacher सर डी to teach. बताओ ये इन्फिनेटिव है, इसमें क्या गलती है? सी एच और ए मैंने इसको प्लूरल करना ही नहीं है. यस रियान, यहाँ पे बताओ वेयर वी हैव सर्कमस्टांस. आपने तो सारे नाउन यूज किया. अच्छा कहते मैंने खुद प्लूरल अच्छा मैनी, देखो खाला मैनी प्लूरल है तो आपका नाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए. हाँ, आई टेक मेनी क्लासेस इन अ डे, या मैं कहूँ मेनी क्लास इन अ डे. मेनी क्लासेस आएगा ना, तो मेनी प्लूरल है तो क्लासेस भी मेरे साथ प्लूरल होना चाहिए. यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए रॉन्ग है. क्यों? कुछ हम लोगों के पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको प्लूरल कर, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, सो वी डू नॉट एड एस विद देम. ओके चलो, नाउन वाला चैप्टर खत्म हुआ. अभी तो प्रोनाउन सबको आता है. आप तो भी में शाजिया थी, या फिर मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा था. I, you and he were exterminated. Where I have mistake? Yes, please. I, you and he were exterminated. Where I have mistake? सर डी Option D. He. What should I write? सर सर आपको इधर करो इधर उधर नहीं है, पूरा बताओ. अरेंजमेंट बताओ, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? सर ही थर्ड He क्या? He third person है. यस सर I first person है. यस तो मैं ही को कहाँ पे लगाओ? सर फर्स्ट पर्सन के जगह में लगाओ. ही को फर्स्ट पर्सन पे लगाओ और फर्स्ट पर्सन को कहाँ पे ले आओ? ही के जगह ही पे एक जगह पे नहीं. ये सजा साहब, आप तो ऐसे खुलेआम काफी से देख रहे हो ना. बस सही सही है, मैं गलत हूँ? नहीं, हाँ, इसी तरह इसी तरह से ही नहीं है, इसी तरह से ही नहीं है. फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लिखता. नो सर में हिम सर नो. सर ही डी को यू वो ही को यू की जगह और यू को क्यों? सर रूल रूल क्या? वो रूल मुझे बताओ, क्या रूल क्या बोल रहा है? सर रूल बोलता है हाँ, कि ही को यू की जगह लाओ. वो रूल मुझे बताओ, मैंने काफी लिखा है. दिखाओ दिखाओ ना, देखो. यस, सर 2 3 1 8 टू. यस सर 2 3 1 नो, सी 1 minute. This is exterminated. First you have to focus on the word exterminated. Exterminated मुझे नेगेटिव सेंस दे रहा है या नहीं? कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है ना, कोई मनफी सेंस दे रहा है. इसी वजह से मेरा अरेंजमेंट 1 3 2 होगा. 1 you will be replaced by he. Okay, here third person will come, here second person will come, then my arrangement of pronoun will be all right. आप सही थे, तुक्का से सही थे. सही थे. आई नहीं है मतलब इसमें. आई है, आई तो यहाँ पे है. देखो आई के बाद वो बोल रहा है कि अगर कोई मनफी जुमला हो, एक्सटर्मिनेटेड का मतलब ये निकाल देना, रिजेक्ट कर देना. ये कोई मनफी सेंस आपको दे रहा है या नहीं? तो इस वजह से मैंने फिर फर्स्ट पर्सन मतलब पहले फर्स्ट पर्सन क्या था? आई और वी. आई और वी वैसे मैंने पहले लगाना है, वो आई मैंने लगाया था. फिर थर्ड पर्सन से क्या मुराद है? ही शी दे. तो मैंने यू लगाया था, तो यू नहीं आना चाहिए, पहले ही शी दे में से कोई आना चाहिए. फिर
कौन सा वाला आना चाहिए? यू आना चाहिए. Sir, which one is wrong? B and D. B is wrong. So instead of B, we must place he. Okay. She, I, and you. ये भी जुमला है. Miss Shazia will be telling. She, I, and you are not able to join them. Where I have circumstance. सर फर्स्ट को एक जगह आई को Hmm. शी की जगह वाला Yes. और यू जो है वो सेकंड पर लगा शी थर्ड पर्सन लगा. चलो ए बी सी में सब में प्रॉब्लम है. अरेंजमेंट किस तरह करो? 1 3 2 की तरह करो. पहले आई होना चाहिए, फिर शी होना चाहिए, सॉरी फिर यू होना चाहिए, फिर थर्ड में थर्ड फिर शी होना चाहिए, फिर यू होना चाहिए. और सही है. यस सर सही. पहले आई होना चाहिए, फिर शी होना, फिर यू होना चाहिए. 1 3 2 मुझे भी गलत किया. चलो नेक्स्ट सेंटेंस. आइडेंटिफाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन इन द फॉलोइंग. ये जो है ना तो साबित है कि बस यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेगा. सर देखो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस मैंने लिखे. मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन कौन से, सेकंड कौन से, थर्ड कौन से. फर्स्ट में इधर लिखूंगा, सेकंड इधर और थर्ड इधर. जी सर. फर्स्ट पर्सन में इनमें से फर्स्ट पर्सन कौन से? हाँ चेक करो. इट है, शी, यू, वी, ही, दे. इनमें फर्स्ट पर्सन कौन सा है? वी है. वेरी गुड. सेकंड पर्सन कौन सा है? इसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा. मैंने आपको खुद सुना कि यू है और झूठ भी बोल रहा हूं. यस. सेकंड पर्सन कौन सा है? यू. थर्ड पर्सन इट और बस यही थे. बाकी सारे थर्ड पर्सन है. चाहे इट हो, चाहे शी हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो. समझ में आई बात? चलो देखो आफ्ताब अभी आप बताओ. डोंट स्पेयर anybody, be, her or anybody else. Where we have circumstance in this sentence. Please. अभी बताओ ना. Yes sir. It sums up where we have mistake in this sentence. मिस शाजिया, मिस सोच रही हो. एंट्री में आपका सवाल सिर्फ 50 सेकंड्स होते हैं. मिनट 1 मिनट भी नहीं होता. 250 सेकंड या 58 सेकंड्स होते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, या 50 सेकंड आई थिंक होते हैं. तो 200 एमसीक्यूज होते हैं. 180 मिनट्स होते हैं टोटल. 180 मिनट्स. तो आप इसको डिवाइड कर लो. तकरीबन 54 सेकंड या 50 सेकंड या 48 सेकंड इस तरह थे. और 48 सेकंड में जो आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम जो आपने कहा, आपने उस प्रॉब्लम को 48 सेकंड में यूज सॉल्व करना है. वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. आपने जो भी करना है अपने मार्कर और अपने दिमाग के जरिए करना है. और आपको एक एक्स्ट्रा शीट भी नहीं दिएंगे. जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसी पेपर पे, जो आपको पेपर दिया है उसी पे आपने करना होगा. इतना तेज सोचना होगा. 48 सेकंड या 50 सेकंड मजाक नहीं. इंसान का पूरे जिस्म आपके हाथ में देती है. मैंने कहा डिफरेंट वेरी करते हैं. अभी मैंने काउंट नहीं किया. 50 सेकंड होते हैं, 58 होते हैं या 54 होते हैं, कितने होते हैं? यस मिस मलाइका. बी डी. यहां पे मैं करेक्ट करने के लिए क्या लगाऊं?
चलो आप लोगों को याद नहीं है, मैं खुद करवाता हूँ। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, डी क्यों सही है? यहाँ पे ये देखो, इस जुमले को सार मैंने क्या कहा, ग्रामर को मीनिंग के लिहाज से नहीं देखो, गलत है। मतलब हमारा ऑप्शन जो है ना वो डी है। बी के बाद मैंने आपको रूल बताया था कि आफ्टर बी वी विल, आफ्टर बी वर्ब वी ऑलवेज बी यूजिंग विच फॉर्म ऑफ द विच केस ऑफ प्रोनाउन, subjective case of pronoun. So here we will not be putting her in the place of her, I should write she. Okay, ये मिस्टेक्स यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लो कि ये गलती थी, इसका करेक्ट वन ये होगा, फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, the thieves entered our class when we were learning. The thieves, okay, थीफ का प्लूरल क्या था? थीव्स था या नहीं था? वो भी एफ पर खत्म हो रहा है, तो उसको प्लूरल करने के लिए मैंने FEIVES लगाया। अभी मिस्टेक कहाँ पे, आप लोग फिर बाद में देख लो। मिस्टेक सी ऑप्शन में है, देख लो, आर्स मैंने लगाया। आर्स मेरे साथ क्या है? ओके, आर्स यहाँ पे कोई भी सेंटेंस, कोई भी मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? आर्स देखो, ये मेरे साथ पॉजिटिव प्रोनाउन है या नहीं है? इसको मैंने इस तरह करना था, गलती से मुझसे इस तरह हुआ, मैंने इसको आर्जिस करना था। मैंने बताया था कि अगर आप पॉजिटिव प्रोनाउन को आप लोग प्लूरल नहीं कर सकते हो, मैंने ये करना था, वो गलती से आर्स आ गया। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। करेक्ट नहीं करेक्ट, ओके, करेक्ट। चलो, he is stronger than me, he is stronger than me. Now where I have problem, he is stronger than me. See, he is there and it is connected with then, by the help of then. Okay, ये then की वजह से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ। तो इसी वजह से मैंने आपको रूल में बताया था कि अगर दो प्रोनाउंस को कौन कनेक्ट करे, देन कनेक्ट करे, दे मस्ट बी इन सेम केस, दे मस्ट बी इन सेम केस। इफ वन इज इन सब्जेक्टिव केस, another must be in subjective. If one is in objective case, the other must be in objective case. If one is in subjective and it is connected by then and other pronoun is in ऑब्जेक्टिव, देयर वी हैव प्रॉब्लम। मैंने बताया था कि अगर देन के जरिए से दो प्रोनाउन कनेक्ट मिल रहे हो, देखो ही मिल रहा है मी के साथ ना, दरमियान में देन आ रहा है, तो ही कौन सा प्रोनाउन केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो इधर भी मी की जगह में क्या लगाऊंगा? आई लगाऊंगा, सब्जेक्टिव केस लगाऊंगा। शी इज स्मार्ट देन हिम, देखो शी मेरे साथ क्या है? सब्जेक्टिव केस है, देन के साथ कनेक्ट हुआ है। आई शुड नॉट राइट हिम, इंस्टेड ऑफ हिम आई शुड राइट ही। यही वाला सेंटेंस था, ये वाला लास्ट पेपर में आया है। सर इसमें आखिरी वाला सिर्फ एक मिनट रुको, ये फर्स्ट पेपर के एक्सक्यूज है। देखो, अ पर्सन विथ जॉब इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस रिस्क्स एंड पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस। ये अ पर्सन हु जॉब इन्वॉल्व्स इन कैलकुलेटिंग, इसको भी पूरा पढ़ लो, अ पर्सन हुज जॉब। देखो, सबसे पहले में आपने एंट्री टेस्ट में आपने क्या करना होगा, एक पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए। ये लोग इतना टफ नहीं देते। देखो, आ पर्सन, यहाँ पे आ पर्सन तीनों सेंटेंस में सही है या नहीं? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे सारा चीजें वेरिएबल है या नहीं है? विच जॉब, हु जॉब, हुज जॉब। इसके बाद फिर आप देख लो, ये सारा वाला एरिया फिर क्या है? सेम है। तो आपने वो जो आपको बुक देगा क्वेश्चन का, ये वाला एरिया नोट करना है इस तरह पेंसिल के साथ। देखो कि यार विच जॉब आएगा या हु जॉब आएगा या हुज जॉब आएगा। हुज जॉब क्यों आएगा? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, सही है। सो इसी वजह से हम लोग क्या लगाएंगे? हुज जॉब लगाएंगे। आई होप यू हैव डन विद इट। ओके, टुडे टेस्ट सेशन वाज देयर, टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद दी
एडजेक्टिव सेशन।